SFA, Enrolled Agent USA, MSc in Applied Finance from Singapore, DISA, DIIT, ICI, become honors, and we are really fortunate to welcome you. Please welcome. Thank you, sir. Mr. Krishantu CN, sir. Thank you all. This session is on the assessment, first session and second session on the payment of tax. Before starting this session, actually, when we were discussing, I requested sir to share his experience, because by sharing his experience, you can understand how to do it practically, and this is the most important thing for us. Okay, and please communicate with sir, and if you have any queries, directly ask sir. He is here to give the answers. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thanks. And Good afternoon, everyone, all the officers. I would like to welcome each and every one of you to the Training Institute, and thank you, sir, for such a warm welcome today. okay, thank you, sir. Warm welcome today to the Regional Capacity Building, Regional Capacity Building Institute for the Indian Audit and Accounts Department, right? So today, sir, what we are going to do, we are going to cover two topics. First one being assessment and scrutiny of returns in the first session. That is from 2:15 to 3:30, right? The second session will start from 3:45 to 5 o'clock. So, sir, see, these are very theoretical topics. Okay. Now, we have not all gathered today here, with all due respect, of this thing just to go through the theory and the sections. That we can also do at our day. Today, sir, our intention is that we gather as much of practical experience from our discussion, from interaction, and from the real life case scenarios, notices, litigations, grounds of defenses, which I have tried to put in as relevant to the topic, right? So, if there is any question, you can ask me right then. We can pause and we can ask the question. Sir, again, I repeat, today the takeaway is as much practical experience we can understand with the clarity of concepts, and with any question answer related to topic, any other topic also, no problem. Okay. So this beginning, we will begin with understanding the bird's eye view of what type of assessments are there under GST Act. So the assessment, the entire chapter is from section 59 to section 64. Section 59 is self-assessment, that we already know what self-assessment is, that every taxpayer का खुद का दायित्व है कि वो सही वैलिड रिटर्न फाइल करे. मींस एवरी टैक्स पेयर हैज टू कंप्यूट हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, हैज टू कैलकुलेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड हैज टू सेट ऑफ एंड हैज टू पे करेक्टली एंड टाइमली. That is self-assessment. That is section 59. That is initiated from the taxpayer. Second is provisional assessment. Provisional assessment is also initiated from the taxpayer, not from the department. What is provisional assessment? We will go, all of this we will go in detail. I'm just briefing two lines about this. Provisional assessment is in the case where I want to continue with my business. I don't know the tax rate or the value of my product or service right now. I've started a new vertical. I've applied to the, not to the advanced ruling authority. No. I've applied to my range office and I've requested the officer, sir, please let me know what should be the valuation for this, what should be the rate of tax on this, right? And in the meantime, sir, I will continue with my business. And once you give a provisional order, I will continue, then final order will come, then we will see. Okay. So this is also initiated by the assessee, by us. Third one is scrutiny of returns, sir. Not initiated by us, the taxpayers, initiated by you, your good selves, that is the officers. This is in the case of registered taxpayers. Scrutiny of returns under section 61. This is section 59. This is section 60. This is section 61. Initiated by the officers. We will go into the depth for this. This will contain most of the practical examples, which is the most prevalent now. So this is scrutiny of returns under section 61 for registered taxpayers, not for unregistered taxpayers. Non-filers. This is for scrutiny. This is again for assessment from the department side for the non-filers who are registered. They are not unregistered. Registered non-filers means someone who is registered but who has not made payment of tax or who has not filed. Then this is section 62. What is section 63? Unregistered type persons means again from the department, assessment for unregistered persons. Who are unregistered persons who are bound to take registration under section 22, section 24 compulsory, section 22, section 23 if he is not exempt, or if he has been cancelled suo motu by your good selves under section 29 read to 21. We will see all that. In that case also, if your registration is cancelled, your liability is absolved. No. If your registration is cancelled, your liability is not absolved. Liability is still there. If you have done anything, you are bound to pay tax.
and summary assessment. This is a case where high fraud chances, where big amounts are there, where there is some substantial evidence, but time is the essence. 1 day, 2 day, 5 day, he will abscond. Immediately I have got evidence, I will take permission and I will come out with a summary assessment. Right? Let us go into the detail. Self-assessment. As I have discussed, self-assessment मतलब क्या हमारा खुद का दायित्व है. Self-assessment में means in 3B, in GSTR 3B, what am I going to do? I am going to put my output tax liability total sales in table 3, 3.1A, B, C, D, right? And in table 4, I will put my input tax credit, set of make the payment. This should be correct. This should be timely. And if it is correct, it is a valid return. What is the definition of valid return? Section 2, clause 117. It is done in self-assessment by the assessee and tax has been paid in full. Right? Now this is the order of payment of tax in the sense that if there is any liability for January 2024, I will make that payment first because I have not filed GSTR 3B of January 2024. Now it is sequential filing. We all are aware of that. According to section 37, if I don't file my GSTR 3B of January 2024, I will not be able to file my GSTR 1 of February 2024 and subsequently. What does this say? Section 49 subsection 8. आप पहले पीरियड का पहले सेल्फ असेसमेंट करिए, फिर नेक्स्ट पीरियड का करिए, और उसके बाद में इफ देयर इज एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन 61, 73, 74 देन मेक द पेमेंट. ओके. अब सर ये जो है वी विल अंडरस्टैंड द नुआंसेस, मतलब प्रैक्टिकल इनसाइट्स क्या है. सेल्फ असेसमेंट तो बोल दिए, सेल्फ असेसमेंट तो जो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ. ये मेन चीज है अपने को जो समझना है, जहां पर लिटिगेशंस आता है, जहां पर आप लोग को भी समझना है. देखिए सेक्शन 73 सबसेक्शन 11, we all know section 73, that is issue of show cause notice in non fraud cases. section 73 subsection 1 जो होता है उसका टाइम लिमिट क्या है अपना 3 years from the due date of GSTR 9, right? We know that non fraud cases. अब section 73 subsection 11 इसमें क्या बोलता है? इसमें ये बोलता है विचित्र केस है. इसमें देखिए section 73 का मैं आपको निकाल के दिया हूं. section 73 subsection 11 को समझने के लिए पहले सबसे पहले अपने को सेक्शन 3, सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 ये सब समझना पड़ेगा. मैं सिंपल भाषा में बताता हूं. सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, इफ आई आउट ऑफ माय ओन वॉल्यूशन से कि सर गलती हो गया, आई विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी. I will go to DRC 03, I will select voluntary payment under section 73 subsection 5. ये तो अपने सब देखे, and the taxpayer will make the payment. केस खत्म. If we do that in full in section 73 subsection 5, no notice. Section 73 subsection 6 says no notice. अच्छा, now notice has been issued under section 73 subsection 8. मतलब क्या normal जो notice issue हुआ. अब within 30 days, if the taxpayer from the receipt of the show cause notice, if he makes the payment same चीज 100 rupees of full tax, 50 rupees of interest, no penalty. ये तो लॉ में लिखा हुआ है. सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 मींस विद इन 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस आल्सो इन नॉन फ्रॉड केसेस नो पेनल्टी. अब नाउ सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ओवर रूल सेक्शन 73 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 73 सबसेक्शन 8. उसके पहले मैं समझता हूं सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? बोलता है कि मैंने वॉलंटरीली भी पेमेंट नहीं किया है, शो कॉज नोटिस भी इश्यू हो गया है, 30 दिन में भी पेमेंट नहीं किया है, मैं आर्ग्यू करना चाहता हूं, रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, आई हैव द राइट टू डू दैट. आई विल डू दैट. ऑर्डर कम्स आउट. If order comes out under section 73, then the order contains penalty of 10% of the tax amount or 10,000 whichever is higher. We know that. But इसमें भी एक तो राहत है. क्या राहत है? ये भी 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तभी भी there is no penalty. We know that in non-fraud cases, right? Now section 73 subsection 11 overrules all of this. Section 73 subsection 11 क्या बोलता है? आपको शो कॉज नोटिस मिला है, नहीं मिला है, 30 दिन में पेमेंट भी कर दी है, तभी भी पेनल्टी तो लगेगा. किस केस में? एक ऐसा केस में व्हेन आई मेड सेल ऑफ 1 crore rupees, I have collected 18 lakh rupees. It is in my bank account. It is January 2024. सर कब तक जमा करना है? 20th February 2024. सर 30 days from 20th February means 30 days from due date of January 3B. मैंने अभी तक बैंक में डाल करके मैं खा पी लिया उसको. आई हैव नॉट मेड पेमेंट टू द गवर्नमेंट इवन आफ्टर 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B रिटर्न. सो ऑन द 31st डे व्हाट हैपेंस इज सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 इज इन्वोक्ड. दे से दैट आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है, आपने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया ऑन द 31st डे, देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ टैक्स टुडे. नोटिस तो 3 साल बाद में आता है, तो स्टिल वी विल सेंड यू अ शो कॉज नोटिस एंड वी विल आस्क यू टू मेक पेमेंट ऑफ
10% ऑफ टैक्स, जो टैक्स पहले 3 साल पहले पेमेंट हो गया, या तो 10,000 which ever is higher. It is a bit harsh, but उसका भी solution है. This why I am saying, इसका लैंग्वेज देखिए, सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 का, in spite of, notwithstanding मतलब in spite of anything contained in section 73 subsection 6 मतलब voluntary payment before show cause notice, under section 73 subsection 8 मतलब within 30 days from issue of show cause notice, in spite of that पेनल्टी तो लगेगा सर 73(9) के अंदर में, अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स मतलब 3B वाला टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स 73 74 वाला टैक्स नहीं, सेल्फ असेस तो 3B वाला टैक्स हो गया ना. अगर 3B वाला टैक्स अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, जो आप कलेक्ट कर चुके हो, कलेक्ट, इफ यू हैव नॉट कलेक्टेड देन 73(11) कैनॉट कम. बट इफ यू हैव कलेक्टेड, यू पुट इन योर बैंक अकाउंट, यू हैव नॉट मेड पेमेंट इवन 30 days आफ्टर द ड्यू डेट, then this section will be invoked. Why? Because आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को डिलेड पेमेंट की है, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया लेकिन डिलेड. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल, वी हैव डिस्कस्ड दिस ओनली. अभी जनवरी 2019 का आपका रिटर्न था, वो 30 दिन 20 फरवरी को फाइल नहीं हुआ, 28 मार्च को हुआ, आफ्टर 30 days. शो कॉज नोटिस कब आया? 5 साल बाद में, जनवरी 2024. वी ऑल नो फॉर 18-19 व्हाट इज द लास्ट डेट, व्हाट वाज द लास्ट डेट टू इश्यू शो कॉज नोटिस अंडर 73? 31st ऑफ जनवरी, राइट? तो 15 जन को आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बोल रहे हैं कि ठीक है सर, कोई और मुद्दा है, ये तो अलग चीज है, 4 मुद्दा है, उसका हम इशू किए, लेकिन साथ में मैं क्या करूंगा, आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट भी कर दिया, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, 15 जन का नोटिस था, 31 जन को पेमेंट कर दिया पूरा 1,20,000 सब चीज. तभी भी बोलते हैं नहीं सर, ये 1,20,000 के ऊपर में 10% और 10,000 whichever is high वो भी पेमेंट करिए, बिकॉज सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ये क्या किए, पैसा कलेक्ट करके बैंक में डाल करके, he is not made the payment within 30 days of self-assessed tax. This is a tool in the hands of department. It is adverse to us. We need to understand this concept. ये तो केस है आपका जहां पर शो कॉज नोटिस इशू हुआ है आपका, राइट? जहां पर कोई मुद्दा है, अदर इश्यूज. ये एग्जांपल देखिए, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है. दिस सेम थिंग 30 days आफ्टर 20th of February ये फाइल हुआ है 3B, 15 जन को नोटिस आया, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है. ये तो सिर्फ ऐसा इशू किया गया है, वो देख रहे थे अपना 30 days के ऊपर का 3B का फाइलिंग है, अच्छा इनको इशू कर देते हैं शो कॉज नोटिस, कोई मुद्दा ही नहीं है. दे आर जस्ट इशूइंग शो कॉज नोटिस टू एक्सट्रैक्ट पेनल्टी वेयर देयर इज नो टैक्स. दिस मे साउंड हार्श टू ऑल, बट ये सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 बोलता है फॉर सेल्फ असेस्ड टैक्स, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग वाइड स्प्रेड ओवर द लास्ट 3-4 years इन ऑडिट्स. आपका 1,80,00,000 का टैक्स पेमेंट हो गया है वॉलंटरी शो कॉज के पहले, लेकिन शो कॉज के पहले हुआ है तो 3B के 1 साल बाद में हुआ है ना. 3B तो 1 साल पहले था, अचानक से टैक्स ऑडिट अगला साल देखे तो वॉलंटरी पेमेंट हम कर दिए. वॉलंटरी पेमेंट करने के 3 साल बाद में नोटिस आता है, बोलता है कि सर आपने तो ये 3B के साथ में फाइल ही नहीं किया है, आपने तो 30 दिन बाद में किया है, तो टैक्स कुछ नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप पेनल्टी निकालो. 1,80,00,000 का टैक्स का 10% पेनल्टी और 10,000 whichever is higher, 18 लाख और 10,000 whichever is higher, 18 लाख 36 लाख में there is no tax amount involved. They are asking, and this is actually happening. तो इसके लिए all of these things, this court judgment has also come out adverse. They said the same thing. 7311 overrules all of this. तो इसके लिए ये मैं केसेस भी यहाँ पर मेंशन किया हूँ, सेम चीज. विदाउट शो कॉज नोटिस 7356, विद शो कॉज नोटिस 738. अब इसमें क्या है, सर्कुलर हैड कम आउट इन सर्कुलर नंबर 7650/2018 सीरियल नंबर 2. इसमें क्या बोलता है सर? इसमें बोलता है कि देखिए, अगर आपका कोई मुद्दा नहीं है, दिस इज द सर्कुलर मींस द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट. इसमें क्या बोलते हैं, अगर कोई और मुद्दा नहीं है तो सिर्फ ये एक मुद्दा बना करके आप इशू मत करिए, पहला चीज. दूसरा चीज बोलते हैं, अगर टैक्स सर पहले पेमेंट हो चुका है वॉलंटरीली 75 में की जो भी चीजें, 78 में नहीं 75 में कलेक्ट करके पेमेंट कर दिए शो कॉज नोटिस के पहले, तब तो कोई सर मुद्दा ही नहीं बनता है ना, टैक्स तो अमाउंट है नहीं, इतना हार्श मत होइए. ये सर्कुलर बोलता है. सर सर्कुलर का अपने क्यों डिस्कस करिए? इज दिस बाइंडिंग ऑन अस और ऑन यू, ऑन योर गुड सेल्व्स? A central tax circular, departmental circular is binding on the tax officers, on ourselves. On the assessee, it is not binding. It is optional. We will take it to our advantage if we want to. So, sir, this is binding on us. Sir, second जो nuance है, section 75 subsection 12 self assessment का. Sir, self assessment का मैंने एकदम पहला लाइन में क्या बोला आप लोग को? 3B वाला टैक्स ये कर दिए GSTR 1 वाला टैक्स. कब से किए? फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम 1st of January 2022. इसका मतलब क्या हुआ? GSTR 1 में 1 लाख मैंने दिखाया है, 3B में 50,000 पेमेंट किया.
तो बोलते हैं कि आपका सेल्फ असेस टैक्स अंडर लॉ इज नॉट 50,000, अंडर लॉ, नॉट अंडर assumption or opinion. Under law, as per explanation number 1 to section 75 subsection 2 with effect from 1st of January 2022, any amount which is displayed, reported in GSTR1 output tax or outward supplies and consequent amount is not reported in 3B. The differential amount if in 1, if it is higher in 3B, if you paid less, the differential amount is self-assessed tax. Self-assessed tax मतलब क्या हो गया? सेम परिभाषा, ये तो आपको करना ही था, आप किए नहीं. अब इसमें क्या है, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर सेक्शन से, ये तो और है, एक और मतलब कि विचित्र सेक्शन है. सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 सेज सर 1 में अगर 1 लाख है, 3B में 50,000 है, कोई एक महीना का भी आप कुछ मत देखिए. सेक्शन 73 का नोटिस इशू नहीं करना है, 73 का DRC 01 के पहले DRC 01A अंडर रूल 142(2)A वो भी इशू नहीं करना है, 74 का भी कुछ इशू नहीं करना है, नथिंग. प्लीज इशू recovery proceeding under section 79. We all are aware recovery proceedings under section 79. What is recovery proceeding? मतलब कि that is the last option. After if you pass a demand order under section 73 or 4, how many months are there for the taxpayer to make the payment? 3 months. Under section 78, within those 3 months he can file an appeal under section 107. 3 महीना का एक दिन खत्म हुआ, 1 more month condonation is there at the mercy and plea of the commissioner under section 107 subsection 4. वो एक महीना के बाद में कभी भी डिपार्टमेंट आ करके क्या कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आपके साथ में, ये सब कर सकते हैं. They can, what can they do? Recovery by deduction of any money which is owed to you by a debtor. आपका माल अगर उनके पास में गोडाउन में जाकर के सीज कर लेंगे, क्या कोई भी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, दिस रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79. So what am I saying? ये है आपका section 75 subsection 2, ये self assess से linked है. What I am trying to say sir, section 75 subsection 2 बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है. ये तो बोलता है कि आपको शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं करना है, सीधा आप नीलामी में आ जाइए. अगर 1 और 3B में डिफरेंस इट इज वेरी हार्श. तब डिपार्टमेंट को कुछ समझ में आएगी सर 1 तो बहुत कारण से बढ़ सकता है, टाइपोग्राफिकल एरर, 1 लाख था 10 लाख भूल से कर दिए, ये महीना में 1 लाख है, 3B में भी 1 लाख होना चाहिए, 3B में 50,000 है. अरे सर गलती थोड़ी है, पिछला महीना में 1 लाख भूल से 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया था. आई कैन एडजस्ट द टैक्स लायबिलिटी इन माय GSTR 3B अप टू 30th of November of the next year and read with circular 26/26/2017 dated 29 December 2017, read with section 39 subsection 9. मतलब रेक्टिफिकेशंस, ओमिशंस, कुछ भी गलती है 23-24 का तो 30 नवंबर 2024 तक 3B में हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो सर क्या गलती की है, 1 में भी तो कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37. तो बहुत जायज रीजन है कि 1 हर महीना हो सकता है, हर महीना नहीं काफी महीने 1 बढ़ सकता है, 3B कम हो सकता है टैक्स पेमेंट. तो फॉर दैट दे आर सेइंग कि सर डायरेक्ट आप ये मत करिए, बहुत हार्श हो जाएगा. व्हाट यू डू इज यू इशू एन इंटीमेशन. इंटीमेशन इज नॉट ए नोटिस. वी ऑल आर अवेयर. आर वी अवेयर ऑफ दिस इंटीमेशन? DRC 01B, इट इज एन इंटीमेशन. इंटीमेशन मतलब कि ऑटोमेटेड, कोई ऑफिसर इशू नहीं करता है, ये ऑटोमेटेड है. ये ऑटोमेटेड मतलब क्या हुआ, 1 मिसमैच 3B 20-25% से ज्यादा, जैसे मैं 1 लाख बोला और 50,000 बोला तो 50% हो गया, तो ट्रिगर हो जाएगा. और वही महीना का जनवरी 2024 में 1 लाख और 50,000 का 3B में कम पेमेंट है, ये ट्रिगर होकर के मेरे पास में पोर्टल में आ जाएगा और बोलेगा कि 7 दिन में आप 50,000 प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर दीजिए आप, या तो वजह बताइए. तो ये वजह वाला जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये आपका इंटीमेशन है सर. ये 50 लाख 1 में दिखाया गया है, 3B में 25 लाख का IGST शॉर्ट पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. मंथ बोला हूं, साल नहीं बोला हूं, मंथ. दिस इज एन इंटीमेशन इन DRC 01B. ये नोटिस नहीं है, दिस इज एन इंटीमेशन. देयर इज नो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑन, नो असेसमेंट. ये आपका सेस में भी 5 लाख का फर्क है. 30 लाख रुपीज आप पेमेंट करिए विद इन 7 डेज, नहीं तो व्हाट विल वी डू, नहीं तो व्हाट विल वी डू, आप 1 फाइल नहीं कर पाओगे. और आप अगर 7 दिन में नहीं करते हो तो मैं आपका नीलामी कर दूंगा अंडर सेक्शन 79 रिकवरी प्रोसीडिंग्स. ये तो लॉ बोल रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो लॉ बोल रहा है 75/12 कि आपका एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये जो नया आपका है सेल्फ असेस टैक्स का एक्सप्रेशन इज एनी टैक्स विच इज इन सेक्शन 37, मतलब GSTR1 में 1 रुपया भी डाली है, 3B में नहीं डाली है, वो सेल्फ असेस बन जाएगा. तो सेल्फ असेस तो मतलब कि उनके हाथ में पावर आ गया, हाथ में पावर आ गया मतलब वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, बहुत हार्श होएगा नीलामी. वो क्या करेंगे, इंटीमेशन एक इशू करेंगे. उसके लिए भी इंटीमेशन में 7 दिन सर,
कोई भी शोकॉज नोटिस का 7 दिन देखिए, इट इज 30 days, राइट? इट्स जस्ट 7 days. If you don't reply within 7 days, one block, business नहीं कर पाएंगे आप. You will not be able to pass on credit. And then what will happen? Your bank statements can be, bank accounts can be attached and all of those things. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ? ये आपको इसलिए बता रहा हूँ because section 75 subsection 12 explanation 1 has mentioned any amount of sale is in 1 but not in 3B. It is self-assessed tax under section 59. उसको हम पकड़ करके बहुत चीज कर सकते हैं. सर दीज आर द रीजंस व्हिच आई सेड. या तो आप जीएसटी डीआरसी 03 में एआरएन डाल करके पेमेंट करिए शॉर्टफॉल का 30 लाख का, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है विद इंटरेस्ट. या तो अब वजह बताइए, वजह क्या है सर? पहला वजह 3B में दिसंबर 2023 में 3B में भूल से 1 लाख रुपया ज्यादा पेमेंट हो गया. आई कैन एडजस्ट टिल 30th नवंबर 2024. तो एडजस्ट किया हो ना सर ये महीना में, तो 3B कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो उसके कारण की वजह से हुआ है केस ड्रॉप. केस भी नहीं, मतलब इंटीमेशन ड्रॉप. सेकंड वजह क्या है? जीएसटीआर 1 में टाइपोग्राफिकल एरर. 1 लाख था, 10 लाख भूल से डाल दिया मैं. तो वो महीना में आपका 1 लाख है, तो वही महीना अगर आप पकड़ लोगे तब तो आपका ज्यादा है. नेक्स्ट मंथ आई विल रिड्यूस इट बाय 9 lakhs. सो लाइक दैट देयर आर ये रीजंस हियर. ये आपका ऐसे दिखता है. अब दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दी रिकवरेबिलिटी अंडर सेक्शन 79. ये जो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग्स है, इट विल कम आउट इन डीआरसी 01D. ये भी इंटीमेशन है. डीआरसी 01B आपका इशू हुआ क्योंकि 1 और 3B में मिसमैच है. 7 दिन में रिप्लाई नहीं किया, डीआरसी 01D इशू हो गया. ये 7 दिन में रिप्लाई नहीं किया, तब तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी पोस्ट हो जाएगा इन पीएमटी 01 और उसके अगेंस्ट में टू सैटिस्फाई दी लायबिलिटी व्हाट विल हैपन? द रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल बिगिन. ये सब क्यों है? क्योंकि 1 और 3B में मिसमैच है और 1 में कोई भी टैक्स डालते हैं जो 3B में नहीं है, दैट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 फर्स्ट एक्सप्लेनेशन रेड विद सेक्शन 59 जो सेल्फ असेसमेंट का बात करता है. इसमें तो सर एक और हद ही हो गया. इसमें हद क्या हुआ है? ये वाला देखिए 7512 में व्हाट इज मेंशन्ड हियर? In 7512 remains unpaid if any amount in 3B remains unpaid or any amount of interest payable. ये बोलते हैं 1 और 3B में टैक्स अमाउंट का आपका फर्क तो समझ में आता है. बोलते हैं कि अगर आपका सेल्फ असेस्ड इंटरेस्ट भी है, आप 3B में अगर डाल देते हो पेमेंट नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो सेल्फ असेस्ड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12. उसके लिए भी आई कैन डू रिकवरी प्रोसीडिंग्स जस्ट फॉर इंटरेस्ट. बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे क्या रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट के लिए? दिस वेरी हार्श, दिस वेरी हार्श. तो उसके लिए यहाँ पर केस लॉ आया हुआ है. व्हाट इज दिस केस लॉ से? एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. दिस इज अ फेवरेबल केस लॉ फॉर द असेसी. व्हाट डज इट से? इन केस अगर जीएसटीआर 3B में अगर मैं सेल्फ असेस करके टैक्स सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं डालता हूं, तो इट इज एन इंटरेस्ट अमाउंट विच इज लायबल टू बी रिकवर्ड इन ड्यू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 एंड सबसेक्शन 74. शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए. अगर टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B में वॉलंटरीली इंटरेस्ट नहीं डालता है तो ये तो हर केस में, इंडिया में हर केस में, तब तो आपका कुछ ना कुछ मिसमैच होएगा. इंटरेस्ट हम दिखाए नहीं है. कौन दिखाता है इंटरेस्ट? वॉलंटरीली पेमेंट. हर केस में वो बोल देंगे कि इंटरेस्ट भी आपका सेल्फ असेस्ड है, सेल्फ असेस्ड टैक्स है. हर केस में डीआरसी 01B डीआरसी 01D रिकवरी प्रोसीडिंग. ऐसे तो नहीं होता है, राइट? सो दे आर सेइंग एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज रिकवरेबल व्हिच इज अटैच्ड टू अ सेल्फ असेस्ड टैक्स, you have to issue a show cause notice to recover that and it will not be considered as self-assessed tax. Right? Provisional assessment, sir. What did I mention? Advance ruling के लिए पैसा नहीं है. Advance ruling के लिए टाइम भी नहीं है. Advance ruling में 10 मुद्दा है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 मुद्दा है. Advance ruling में मेरे को कहाँ जाना है? I don't know. Here I have to go to my adjudication cell, my range office. किस केस में है? आज मैं नया धंधा स्टार्ट किया हूँ आइसक्रीम का. आइसक्रीम we all know earlier there was a dispute 5% or 18% whether ice cream is sale of service or sale of goods. Eventually वो आपका 18% हो गया and all that. I don't know today. I started an ice cream business or I started what? A wheat flour business. जो वो अपने जो करते हैं आटा जो अपने बनाते हैं फ्लावर का, तो जॉब वर्किंग के लिए बेचते हैं अपने, राइट? जो अपने गेहूं रहता है, तो गेहूं को जब पिसते हैं तो उसका फ्लफ आता है. वो फ्लफ का क्वांटिटी भी ऑल्सो शुड बी एडेड इन दी वैल्यू ऑफ जॉब वर्किंग. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एडवांस रूलिंग है, वी नो दैट, बट वो ऐड नहीं हो रहा था, राइट? तो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल प्रैक्टिसेस
where the entire trade practice, the entire industry is doing that, for which a section 11A has come out, empowering section कि we will start afresh. Government says कि पहले आपने जितना 5% का पेमेंट किया है भूल जाइए, 8 से 18% होगा. I will not issue any notice. वो एक empowering section है. That's a different thing in the budget only 2024. But in this case, I don't know the tax, neither do I know the value. I want to continue my business. I apply in what? I apply for provisional assessment in ASMT 1. And officer asks further details. अच्छा क्या धंधा है आपका बताइए? In ASMT 2. This is initiated by me. Taxable person replies in ASMT 3. Within 3 months he has to issue provisional order. ठीक है, 3 months is a short time. मैं अपना 5% में उसको आइसक्रीम को बेच रहा हूँ और ये प्रोविजनल ऑर्डर आता है आपका 5% का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 महीना बाद में 5% का आ जाता. प्रोविजनल ऑर्डर आपका ये 3 महीना का ये आ गया, राइट? नाउ इसमें वी हैव टू इशू सम सिक्योरिटी. मानिए कल 18% हो गया, मैं भाग गया, धंधा ही बंद कर दिया, भाग गया, मैं स्कॉम्डिंग. सो आई नीड टू टेंडर सम बैंक गारंटी. एक्सपोर्ट के लिए बैंक गारंटी होता है इन अंडर LUT इन RFT 01, वी नो दैट, राइट? इसमें भी बैंक गारंटी अपना होता है. नाउ व्हाट विल हैपन इज आफ्टर योर provisional order has been passed, within 6 months from the date of provisional order, final assessment order will be passed. कि ठीक है, मोटा मोटी अभी लगता है आपका वैल्यूएशन 100 रुपया में 5% होना चाहिए, लेकिन I want to come out with my final order. You continue with 5%, no problem. Final order comes out after 6 months from 3 months, means 9 months later from the date of tendering the particular application. So further details are asked in ASMT 6. Order is in ASMT 7. अब ये ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा मेरे को. आई नीड टू कंसल्ट विद एक्सपर्ट, आई नीड टू कंसल्ट विद अदर पीपल बिकॉज इट्स अ ट्रेड प्रैक्टिस. सो आई कैन सीक फर्दर टाइम बाय अ सीनियर ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर और फर्दर 6 months, मतलब 9 महीना प्लस 6 महीना, 3 महीना प्रोविजनल ऑर्डर, 6 महीना फॉर फाइनल ऑर्डर, 6 महीना फाइनल ऑर्डर प्लस 6 महीना अगेन फॉर फाइनल ऑर्डर. और अगर बहुत ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है, देन देयर इज अ प्रोविजन टू सीक एक्सटेंशन फॉर अप टू 4 years फ्रॉम द कमिश्नर. अब सर इसका मुद्दा क्या है? व्हाट इज दिस? अब फाइनल ऑर्डर आता है 9 महीना बाद में, इट सेज 18%. इट इज गुड्स आइसक्रीम. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई हैव बीन पेइंग 5%, I have to pay the remaining 13% along with applicable interest. कोई राहत नहीं. I'll have to make payment of interest along with the tax. और अगर मानिए कि कम आ गया, 18% में मैं पेमेंट कर रहा था, 5% आ गया, it is favorable for me, I can ask for a refund in RFT 01. इसका प्रोविजन है. So this is for those people where in only 2 cases, value or rate. In advance ruling, there are lots of other cases. I don't want to go for advance ruling. This provisional assessment under section 60 initiated by me. So scrutiny तो सबसे ज्यादा prevalent है. What is happening in scrutiny, sir? What is scrutiny? This is एक process में बनाया scrutiny. ASMT 10 का notice आता है for what? Discrepancies in GSTR 1 3B, अभी जो बात की अपने, discrepancy in 2A में क्रेडिट आया 100 रुपया, आप क्लेम कर लिया 1000, चेंज आएगा, राइट? RCM का क्रेडिट आप क्लेम कर लिया 100 रुपया, टैक्स पेमेंट किया 50 रुपया, तो गवर्नमेंट को 50 रुपया पेमेंट किया, आप ले लिया गवर्नमेंट से 100 रुपया, नोटिस आएगा. These are what? Discrepancies in what? Returns and related particulars. उसके लिए कुछ लेजर कुछ चाहिए? No, there is no power as such by the SOPs also that before the issue of ASMT 10, मतलब before the issue of scrutiny notice, आपको गैदर करना कुछ नहीं है. DG आर्म, आपका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ये जो आपका रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट है, उनका रिपोर्ट्स, एडवांस एनालिटिक्स का यहाँ का रिपोर्ट, ई-वे बिल आपका एक्सेट्रा, ई इनवॉइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर अदर डिटेल्स यू हैव, you can take all that and with the information available you can GSTR 1, 3B, 2A, 2B, 9, 9C, all of those. You don't need to ask for any details initially. नहीं तो ऑडिट हो जाएगा वो तो. It will be audit under section 65. Audit नहीं है ये, no interface initially. You issue, इसमें क्या है? We are verifying the correctness of returns 3B and 9, and we loosely say 2A, 2B. Those are returns. Those are not returns. Those are related particulars. Actual return is 3B. That is section 39. Actual return is GSTR 9 annual return section 44. Right? ये actual returns बोलते हैं. तो इसमें क्या है सर? Let us understand. Taxpayer को ASMT 10 मिला, उसमें 10 लाख रुपया का differences है input और output का. We will see all those live notices. So what is there in that? Here the taxpayer he says that okay fine, I will give you an explanation. इसका सब ये difference का कारण है and it gets accepted. So an order comes out of drop proceedings. Case closed.
कोई 73 74 का नोटिस खोलना ही नहीं है, ऑडिट में जाना ही नहीं है, स्पेशल ऑडिट में जाना नहीं है अंडर सेक्शन 66, इन्वेस्टिगेशन समन्स में जाना ही नहीं है अंडर सेक्शन 67, अंडर सेक्शन 70, केस ड्रॉप। और अगर ये पेमेंट कर देता है और ASMT 11 रिप्लाई फाइल करता है, केस ड्रॉप। और इफ ही डज नॉट फाइल अ रिप्लाई, he does not file a satisfactory reply, then no ASMT 12, डायरेक्ट शो कॉज नोटिस और डायरेक्ट रेफरेंस टू ऑडिट कमिश्नरेट कि सर बहुत झोलझाल लग रहा है, ये डायरेक्ट सिर्फ एडजुडिकेशन से नहीं होएगा, लेजर्स लेना पड़ेगा, वो ऑडिट खोलिएगा। या तो एंटी इवेजन, फेक इनवॉइस लग रहा है, सप्लायर तो है ही नहीं, एक्सपोर्टर है तो रिस्की एक्सपोर्टर से सप्लायर से खरीदा है, तो सर एंटी इवेजन में भेजिए। सो ही हैज द पावर टू डू ऑल ऑफ दैट। दिस सेक्शन 61, ही हैज द पावर टू recommend to for audit, special audit, inspection, ये inspection investigation और simple plain vanilla 73 74 adjudication. What does he have to do? Scrutinize, return 3B9 and related particular. कहीं पे लिखा है आपका gather करिए? No, we are not going to gather anything with the information available. This is rule 99, section 61 read with rule 99 is the hemisphere for scrutiny of returns. 99 में क्या लिखा हुआ? With information available. कुछ नहीं मांगना है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप इशू करिए, राइट। नाउ सर टू स्ट्रीमलाइन ऑल ऑफ दिस देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस, एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दोज आर मॉडल प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स कि सर ऐसे ऐसे करना है, इसके दायरे के बाहर में नहीं जाना है अपने को। सो फॉर 17-18 दिस इंस्ट्रक्शन नंबर 223 हैज बीन इशूड, फॉर 2019 ऑनवर्ड्स इंस्ट्रक्शन नंबर 02/2023 has been issued, और उसके पहले वाला 2000 ये है 2022 में इशू हुआ था फॉर 17-18, and for 19-20 and onwards it is instruction number 02/2023. We are going to see, इसमें देखिए मोटा मोटा बात क्या लिखा हुआ है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं। इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसी पे आप करिए। ASMT 10 क्या क्या इंफॉर्मेशन कहां से अवेलेबल होता है, यहां से अवेलेबल होता है, GST पोर्टल, वे बिल एक्सेट्रा। सर वन मोर थिंग, I got the notice ASMT 10 in October 2023, ठीक है। अब नहीं मानिए कि August 2023, last date for the supplier to upload his GSTR1 any invoices 30th November 2023, right? For 22-23 बोलने का मतलब क्या है, जब तक नवंबर आया 2A बढ़ गया मेरा, सप्लायर 1 चढ़ा दिया। जब तक दिसंबर आया when I replied, I made the rectifications, I made voluntary payments। जब तक जनवरी आया when I got the particular order or I replied, so the latest available information the officer has to rely. He cannot say अच्छा आपका गलती था सितंबर में तो हम सितंबर को पकड़ के रखेंगे। No, today सितंबर में ASMT 10 इशू हुआ, 30 डेज का टाइम रहता है इन ASMT 11, मतलब अक्टूबर हो गया, फिर 30 डेज का टाइम रहता है ऑर्डर निकालने के लिए इन ASMT 12, so 60 days. In 60 days lots of things can happen. So the current status the officer will take that कि सब अगर सही हो गया है, सप्लायर ठीक कर दिया, आप ठीक कर दिए, तो they will take that into consideration. I've already mentioned minimal interface, right? इसमें before issuing ASMT 10. अच्छा, who's the proper officer in all cases? Superintendent. ये कौन सा सर्कुलर बोर्ड है? सर्कुलर नंबर 33/2017. It says that the proper officer is superintendent. We will see in cases of 73-74 proper officer is as per monetary limits. This is not as per monetary limits. तो scrutiny है. This is not adjudication. This is an assessment. Adjudication मतलब क्या हुआ? आप कुछ चीज ऐसा कर रही है जहां से आप डिमांड क्रिएट कर रही है फॉर रिकवरी. This is assessment. This is not adjudication. Adjudication is 73-74. ये एक रास्ता है. ये एक रास्ता है to reach 73-74. ये एक रास्ता है to reach 73-74, 65. ये एक रास्ता है to reach 73-74, 66. इन्वेस्टिगेशन, समन्स, ये सब रास्ता है टू रीच 73-74. 73-74 में ऑर्डर आएगा, फिर रिकवरी होएगा. यहाँ पर रिकवरी नहीं होएगा, यहाँ पर तो वॉलंटरी पेमेंट होता है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5, व्हिच वी कैन डू एनी टाइम. आई कैन डू इट टुडे आल्सो, आई डोंट नीड अ नोटिस फॉर दैट. सर दिस इज द मॉनिटरी लिमिट टू इशू व्हाट शो कॉज नोटिस. एज आई मेंशन, ये टाइमलाइंस है, ये सब जो आपके एसओपीज है. 30 दिन के अंदर ASMT 10 इशू होएगा, 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर में ASMT 11 में रिप्लाई करना है, देन ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. This is as per your circular number 31/05/2018. It says in case of issuing show cause notice, I can challenge. 1 करोड़ के ऊपर का नोटिस है, सुपरिंटेंडेंट इशू कर रहा है, क्या नाम सुपरिंटेंडेंट का था भूल से, I will challenge it on grounds of jurisdiction, extra judicial power. This will not hold its void ab initio. So this needs to be followed.
कौन सा केस है? इन केस वेयर द टैक्स अमाउंट CGST डज नॉट एक्सीड 10 लाख फॉर CGST इटसेल्फ, सुपरिटेंडेंट 20 लाख फॉर CGST प्लस IGST और IGST 20 लाख तक कौन करता है? सुपरिटेंडेंट। 20 लाख से 2 करोड़ के बीच क्या, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में कौन करता है? ACDC, एंड अबव दैट इज एडिशनल और जॉइंट कमीशन। दिस नीड्स टू बी फॉलोड। सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। 31st August 2024 last week was the last date to issue order for non-fraud cases in respect of financial year 1920। इसके बाद में इशू हो सकता है? नहीं, ये तो 2 बार एक्सटेंड हुआ है। ये तो 2 बार एक्सटेंड हुआ है। क्या एक्सटेंड हुआ है 2 बार? ये तो एक्सटेंड हुआ है, उसके साथ में ये भी एक्सटेंड हुआ है। 5 months एक्सटेंड हुआ है। अपना रूल क्या है सर? रूल क्या है? 31st December 2020। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। 18-19 का तो 31st December 2019 होना चाहिए था। ये तो और एक्सटेंड हुआ है बिकॉज वी कुड नॉट कोप अप। ये तो एक्सटेंड हुआ है। ये लास्ट डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न, एक्सटेंडेड डेट का 3 साल से ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर के 3 महीना पहले शोकॉज नोटिस निकालना है लास्ट डेट से। तो लास्ट डेट से तो लॉ बोलता है, कहां बोलता है? सेक्शन 73 सबसेक्शन व्हाट? 73 सबसेक्शन 9, 73 सबसेक्शन 10। तो मैं क्या बोल रहा हूं? 1920 का लास्ट डेट टू इशू ऑर्डर आफ्टर एक्सटेंशन इट वाज 31st of August अंडर 73 और उसका शोकॉज नोटिस 3 महीना पहले आपका 31st मई का है। अब नाउ दिस ईयर वी आर सीइंग फॉर 2021 लास्ट डेट टू इशू शोकॉज नोटिस 27 नवंबर। मतलब दुर्गा पूजा के बाद में, दिवाली के बाद में देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर टू इशू शोकॉज नोटिसेस इन नॉन फ्रॉड केसेस फॉर 2021। If and only not extended, this will be time barred. Sir, real life notices, ये तो स्क्रूटनी है सर, ये सब तो अपने देखते हैं। This is स्क्रूटनी नोटिस आता है, उसके साथ में डिटेल्ड अटैचमेंट रहता है। The notice can't be vague, so एक लाइन नहीं देख सकता हूँ ना मैं, उसके साथ में एक्सेल शीट्स रहेगा, PDFs रहेगा, मतलब पूरा बताएंगे ना, वर्किंग्स बताएंगे। अदरवाइज इट्स अ नॉन स्पीकिंग नोटिस, तो इट विल बी चैलेंज। ये पूरा अटैचमेंट है सर। पहला ग्राउंड क्या है? ये मैं लेकर के आया हूँ, आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या है। ये आपका है कैलकुलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या है? 1 में पूरा साल में मैंने कितना दिखाया है? 35,32,000। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने 1 में डिक्लेयर किया इतना, 9 में कितना डिक्लेयर किया है? 35 सेम। 9C में कितना डिक्लेयर किया है? 3543। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईवे बिल डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उसमें 35,83,000 है, तो बहुत ज्यादा है। तो I will take the highest of all, 1, 3B, 9, 9C, way bill data or any other data. Why will I stick to only one? सर ये बिल डाटा का तो हम लोग कुछ ये नहीं करते, वो सेल नहीं माना जाता है। सर देखिए, वे बिल डेटा जो है आपका, ये इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। ये अपना डेटा आता है, ये अपना रियल लाइफ स्क्रूटिनी नोटिस का अपना अटैचमेंट है, जहां पर हाईएस्ट ऑफ ऑल लिए है टू से कि आपका इतना आउटपुट टैक्स बनना चाहिए और आपने कितना पेमेंट किया 3B में इतना। तो शॉर्टफॉल बोल रहे हैं कि ईवे बिल आप इतना जनरेट किए हैं, मतलब इतना अमाउंट का आपने IGST दिखाया है, वे बिल आपने जनरेट किया, सामने वाला पार्टी नहीं। ये वे बिल डेटा से उन लोग वे बिल पोर्टल से निकालिए। अब सर आप बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं, इज दिस कंक्लूसिव? आज सर पॉइंटेड आउट, इज दिस कंक्लूसिव? पेमेंट करना ही है क्या? नहीं करना है ना? क्या अंधाधुंध पेमेंट कर दूं मैं? सर वी नीड टू डू अ रिकॉन्सिलिएशन। कुछ केस लॉ बेस्ड ये रिकॉन्सिलिएशन है। अरे बहुत सारे केसेस है जहां पर वे बिल बनता है, जहां पर अपना कोई सप्लाई नहीं होता है। बहुत सारे केसेस है जहां पर सप्लाई होता है, वे बिल नहीं बनता है। कौन सा ऐसा केस है सर? सप्लाई है सिर्फ 25,000 का, तो क्या करना है सर? वो भी इंटरेस्ट रेट है, 50,000 के नीचे है तो नो वे बिल। लेकिन 1 और 3B में तो दिखाएंगे सेल हुआ है 25,000 का, मतलब टैक्स का मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, आपका ज्यादा हो गया उसमें। 90,000 का इंटरेस्ट रेट सेल है, उसमें वे बिल होएगा क्या? नहीं, बंगाल का बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिया, बंगाल का नहीं होएगा। 1 लाख है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, 1 लाख वैल्यू, नॉट द टैक्सेबल अमाउंट, द इनवॉइस वैल्यू 1 लाख का इनवॉइस का अगर है, उससे ऊपर का आपका है, आपका इंटरेस्ट रेट है, तो वे बिल लगेगा आपका, वे बिल लगेगा आपका। और 1 लाख के नीचे का इंटरेस्ट रेट, ओरिजिनेटिंग इन वेस्ट बंगाल, टर्मिनेटिंग इन वेस्ट बंगाल, नो वे बिल, ओनली कंसाइनमेंट नोट बिल्टी, ओनली टैक्स इनवॉइस, लेकिन पेमेंट तो करना होगा, राइट? कौन से केस में? नॉन मोटराइज व्हीकल, 10 लाख का माल नॉन मोटराइज व्हीकल से बेच रहा हूं, 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, नॉन मोटराइज व्हीकल, एग्जैक्ट, वे बिल नहीं बनेगा। कौन से केसेस है वे बिल आपका लगेगा? सप्लाई नहीं है, मैं यहां से झारखंड भेज रहा हूं जॉब वर्किंग के लिए कोई भी अमाउंट का, तो उसका एग्जेम्पशन नहीं है। इन बंगाल इफ आई एम सेंडिंग एनी गुड्स ऑफ एनी वैल्यू फॉर जॉब वर्किंग, इट इज एग्जेम्प्ट, वी नो दैट, राइट?
दैट हैड बीन रिस्टोर्ड अगेन ऑन 1st of December 2023. एक बार रिपील हो गया था, वापस से रेट्रोस्पेक्टिवली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर दिए. लेकिन इंटरस्टेट अगर मैं कोई भी अमाउंट का जॉब वर्किंग के लिए बेचता हूँ, वे बिल लगेगा उसमें, बट देयर इज नो सप्लाई. डिलीवरी चलान से जाता है ना, सेल का हुआ है, जॉब वर्कर को दिया, जॉब वर्कर वापस देगा तब बेचूंगा, या तो जॉब वर्कर अपने जगह से बेचेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा करके मैं, राइट. तो ये रिकॉन्सिलिएशन है सर. ये आपका स्क्रूटनी नोटिस बोल रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ. 35,83,000 में ऊपर डाल दिया हूं यहां पर, और नीचे डाल दिया हूं आपका ये 35,32,000 जो 3B में पेमेंट किया हूं. ये 3B नीचे है, ये शायद कट गया आपका यहां पर. तो इसमें प्लस माइनस करना होगा अपने को. ये इसमें कौन सा नहीं होगा, वे बिल फॉर ऑल दोज सप्लाईज वेयर थ्रेशोल्ड मैच ही नहीं करता है इंटरेस्ट रेट. तो वे बिल तो होएगा ही नहीं, ऐड नहीं होएगा. वे बिल तो जनरेट ही नहीं हुआ है, लेकिन सेल किया हूं तो ये ऐड होएगा. इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट. सर क्रेडिट नोट्स, क्या कोई सर्विस किया हूं, आई हैव सोल्ड सर्विसेज. वे बिल तो सर्विस में हो ही नहीं सकता. सर्विस इज इंटैंजिबल, हाउ कैन आई ट्रांसपोर्ट सर्विस? वे बिल इज ओनली एज अ मीन्स टू ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स. देयर इज नो अदर पर्पस, राइट. तो सर्विस के केस में भी ऐड करूंगा मैच करने के लिए. क्रेडिट नोट्स इशू हुआ है फॉर अंडर थ्रेशोल्ड सप्लाईज. तो जब माल जब दिया मैं, तब आपका ईवे बिल जनरेट नहीं. जब माल वापस आ रहा है तो वे बिल क्यों जनरेट करूंगा? लेकिन सेल माइनस किया हूं, क्रेडिट नोट इशू किया हूं, तो सेल माइनस है, वे बिल तो जनरेट ही नहीं किया, वे बिल बढ़ा हुआ है, तो वे बिल से माइनस करना पड़ेगा नीचे मैच करने के लिए, तो माइनस किया. दिस इज रिकॉन्सिलिएशन सर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज स्क्रूटिनी नोटिस, जहां पर अंदर घुसना पड़ेगा. एट स्क्रूटिनी लेवल नो केस लॉज आर रिक्वायर्ड, ओनली रिकॉन्सिलिएशंस, ओनली एंड ओनली रॉ डेटा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ये आपका देखिए, ये सब आपका स्क्रूटनी का पॉइंट्स है. दीज आर पैरामीटर्स, रोबस्ट 13 रोबस्ट पैरामीटर्स दिया गया है इन इंस्ट्रक्शन नंबर 02 2022-2023. ये तो आपका एक है, ये वाला एक है, ऐसे करके अनेक है. क्या है आपका? ये आपका 3B में आपने इनपुट क्लेम किया है 1,24,68,000, लेकिन 2A में अवेलेबल है सिर्फ 1,21,00,000. 3-3.5 लाख, 3.25 रुपया गवर्नमेंट का खा गए. So obviously there will be a notice. You have to explain. What is the explanation? I have claimed 2,69,159 more IGST than what is available in 2A. How can I do that? I can do that legally before 1st of January 2022. मैं क्यों बोल रहा हूं ये? Because from 1st of January 2022, section 16, subsection 2, clause AA, read with amended rule 36 sub rule 4 आ गया. उसका मतलब क्या हुआ? 2B में आया तभी क्लेम कर पाएंगे, 2B में नहीं आया तो क्लेम नहीं होगा. ये लॉ बना है कब से? 1st जनवरी 2022 से. तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 21-22 में भी टिल 31st of December 2021 तक आप तभी भी एक राहत ले सकते हैं. मतलब हम लोग, ये सर ये लॉ नहीं था, बिकॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA, द मेन लॉ में जो चेंज आया है वो फ्रॉम 1st of January 2022 आया. इवन दो रूल 36 सब रूल 4 फ्रॉम 9th of October 2019 से बोल रहा था कि प्रोविजनल क्रेडिट लीजिए, जितना 2A में आया एलिजिबल उसका 20%, फिर 10%, फिर 5%, लेकिन दैट वाज इन द रूल. रूल तो लॉ को तो सुपरसीड नहीं कर सकता है ना. इन मेन लॉ कहा था देयर वाज नो सच कंडीशन, राइट. सो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर. अब इसमें देखिए आरसीएम का है, ये दिस वन ऑफ द अदर थिंग्स. मैंने क्लेम किया आरसीएम 1,58,000, लेकिन टैक्स पेमेंट किया 1,52,000. 5,000 रुपया पेमेंट ही नहीं किया, क्लेम कर लिया, नोटिस आया. ये तो अरिथमेटिकल है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो अरिथमेटिकल है फॉर स्क्रूटिनाइजिंग एंड चेकिंग द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स. तो इसका मैंने रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया? सर पिछला साल का मार्च का पेमेंट मार्च में किया, लेकिन अगला साल अप्रैल में क्लेम किया, तो अब वो भी ले लिए इसमें, तो माइनस तो करिए. इस साल का मार्च का मैंने पेमेंट मार्च में किया, लेकिन क्लेम किया अगला साल, उसका ऐड करिए. ऐड प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा. दीज आर रिकॉन्सिलिएशंस. सर ये तो बहुत खतरनाक है. इन दिस वन पेज देयर आर मोर देन 10 सेक्शंस. दिस स्क्रूटनी नोटिस. व्हाट इज दिस फर्स्ट वन? ITC uploaded by supplier whose registration has been cancelled retrospectively. इसका तो राहत आ गया है. इसका मतलब क्या हुआ? माल मैंने खरीदा 2019 में, 2023-24 में 6 महीना फाइल नहीं करता सप्लायर 3P, या फेक इनवॉइस के केस में कुछ भी फंसता है. अब नाउ द डिपार्टमेंट सुओमोटो हैज पावर अंडर सेक्शन 29 read with rule 21 to retrospectively cancel from any date. Any date मतलब as per the discretion. वो डिसाइड करते हैं फ्रॉम 1st of जुलाई 2017 से हम कैंसिल कर देते हैं.
मतलब हर इनवॉइस जो अगला सप्लायर इशू किया है, वो जो आदमी खरीदा है, जैसे मैं एज अ बोनाफाइड जेन्युइन बायर आई विल रिवर्स ऑल ऑफ दैट। नो, तो धंधा कैसे होएगा? इट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। जो ऑलरेडी पेमेंट किया वहां आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करिए। नो, देयर आर सो मेनी केस लॉस फॉर दैट। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाला जो था आपका, ये वाला रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन। ये देखिए, आईटीसी अपलोडेड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। इसमें ऑल दीज आर केस लॉस, ऑल दीज आर केस लॉस बाय सेवरल ये आपके हाई कोर्ट, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि जब मैं ट्रांजैक्शन किया 2019 में तब जेन्युइन था ना, जीवित था, आप अपना ड्यू डिलिजेंस किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक से ट्रांजैक्शन किए थे, ऑल ऑफ दोस ग्राउंड्स, तो कुछ नहीं होने वाला है। और डिपार्टमेंट को रिप्रीमांड भी किए, बोले कि 6 महीना जहां से डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ है, आपका जो रिटर्न फाइल नहीं किए सप्लायर, वहां से कैंसिल करो ना। अब 1 जुलाई 2017 से क्यों कैंसिल कर रहे हो? अगर आप अगस्त 2023 से फाइल नहीं कर रहे हो 6 महीना तक, तो अगस्त 2023 से आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करो। मेनी केस लॉस आर देयर फॉर दैट। ये देखिए सेकंड वाला, आईटीसी अपलोडेड हु हैज नॉट फाइल्ड रेलेवेंट जीएसटीआर 3B। सर ये तो बहुत ही खतरनाक है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, मतलब क्या है? देयर आर 4 कंडीशंस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कुछ टाइम 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 अप टू 31 दिसंबर 2021। 4 कंडीशन था। पहला कंडीशन कि मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, माल क्या गुड्स मेरे पास में एक्चुअल में आना चाहिए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B, जो फेक इनवॉइसेस में चैलेंज करते हैं कि इनवॉइस इशू किए है लेकिन माल ही नहीं आया बिकॉज आपका सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट है, तो आप रिवर्स करो। तीसरा कंडीशन क्या है? खतरनाक, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, मैंने सप्लायर को पेमेंट किया है, सप्लायर खा करके भाग गया, कोविड हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, बदमाश आदमी निकला, he did not file his GSTR 3B and he did not pass on, did not submit that tax collected from me to the government treasury। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा ही नहीं गया तो मेरे को इनपुट कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट ये बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूं सर मैं तो उनको पेमेंट कर दिया, आप उनको पकड़ो। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे केस लॉस बोल रहे हैं। देयर आर सो मेनी केस लॉस हियर। सनक्राफ्ट एनर्जी आपका प्राइवेट लिमिटेड upheld by the Supreme Court, passed by our Calcutta High Court on 14th of December 2023। ये बोलता है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप करिए सप्लायर के ऊपर, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? मैं तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया हूं। ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस वेयर सप्लायर इज मिसिंग, सप्लायर्स बिजनेस हैज शट, सप्लायर देयर इज हैंड इन ग्लव कनाइवेंस, प्रूवन मटेरियल कोजेंट, evidence is there with the department, or in such exceptional situations if the supplier is untraceable, then you may come to the buyer and ask him to reverse because it will be cascading effect of taxes। लेकिन सर ये सब तो सब भाषण है, ये तो छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं तो अनगिनत अपील्स कर लिया हूं, तो अपील लेवल पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो क्लियर कट नोटिफिकेशन फॉर दैट, देयर इज नो क्लियर कट रूल और एक्सेट्रा। उसके लिए अभी एमनेस्टी स्कीम निकाला गया है। अब यू आर ऑल अवेयर राइट, एमनेस्टी स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड yesterday, the date of notification that is from 1st of November 2024, और ये बजट में अनाउंस कर दिया गया था 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग on 22nd जून। एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128A क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें? ये एमनेस्टी स्कीम, दिस इज द एमनेस्टी स्कीम। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है? 17, 18, 18, 19, 19, 20 में अगर टैक्स पेमेंट कर देते हो आप तो नो इंटरेस्ट नो पेनल्टी। ये नोटिस देखिए, दिस इज द सेम नोटिस फॉर 3B का सप्लायर फाइल नहीं किया। आई हैव मेड द पेमेंट टू द सप्लायर बट सप्लायर नॉट फाइल्ड इट टू द डिपार्टमेंट। सो वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, जो अभी भी राहत नहीं मिल रहा है। सर ये तो 20 फरवरी तक आपका इंटरेस्ट था 48,000, अभी तो 70,000 हो गया। टैक्स अमाउंट 50,000 है, इंटरेस्ट पेनल्टी मिला करके 1 लाख 1.25 लाख हो गया। कौन और बोझा लेगा? एमनेस्टी स्कीम इज कमिंग, दे विल लाइक राहत नहीं मिलने वाला। आई एम रेडी टू पे 100% ऑफ टैक्स विद इन 31st of March 2025। प्लीज वेव ऑफ 100% ऑफ माय इंटरेस्ट पेनल्टी। सेक्शन 128A रेड विद न्यू रूल 164 अभी तक निकला नहीं है, कल अनाउंस हुआ है कि निकलेगा, राइट? सो दीज आर सैंपल्स व्हिच आई पुट कि स्क्रूटनी नोटिस कैसा लगता है, उसको देखिए एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। और भी एग्जांपल्स मैं काफी दिया हूं। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, अब क्या आ गए सर? अपने पहले कहा थे सेल्फ असेसमेंट जो खुद से करना था, फिर सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट खुद से अप्लाई करना था, फिर सेक्शन 61 रजिस्टर्ड आदमी का कुछ भी गलती हो रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंट एक तो नोटिस भेज रहा है, और अभी सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर। नॉन फाइलर मतलब क्या है? विच आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग
कि ये सपोज टू ये रजिस्टर्ड है बट ये क्या है, लेजी आदमी है, 20 फरवरी को फाइल नहीं करता ये अपना जनवरी जीएसटीआर 3B जनवरी 2024 जीएसटीआर 3B रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन 20th of February 2024. ही इज नॉट फाइल्ड दैट. तो 28 फरवरी को एक तो क्या आता है, एक तो नोटिस आता है. कहां पर? पोर्टल में. मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग नोटिस. नोटिस अंडर सेक्शन 46, नोटिस फॉर डिफॉल्टर्स. दैट सर विद इन द नेक्स्ट 15 days if you are not filing your GSTR 3B return and if you are not paying the taxes under self assessment, I am taking up that self assessment converting into ex parte judgment. मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. 2-3 महीना का मेरे पास में रिटर्न है आपका, उसको into 12 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा मैं. मतलब क्या? Proportionately I will take that. I know your industry, I know your profit percentage, 10% in footwear industry, 11% करके I will do for the entire year as per the data available and gathered by me. Section 61 में gathered नहीं था, इसमें gathered है. I can gather from different departments. तो इसमें क्या है? This particular notice will come. This notice is a real life notice of a client. क्या बोलते हैं सर? सेक्शन 46 में 15 दिन में अगर आप फाइल नहीं करते हो तो 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे हम लोग. अब सर मानिए कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है, तो तभी भी राहत है. 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मेरे को चेतना आता है, मैं फाइल कर देता हूँ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, एवरीथिंग. दैट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विल बी विथड्रॉन. मानिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 10 लाख का वो किया, लेकिन वो महीना में मेरा सीजन ही नहीं था. मेरा तो सीजन दुर्गा पूजा के टाइम आता है. टेक्सटाइल बिजनेस, बड़ा बाजार में मेरा धंधा है. मैं जुलाई में फाइल नहीं की, जुलाई में तो कोई बिजनेस ही नहीं है मेरा. आपने प्रपोर्शनेट करके पूरा सीजन का, पूरा साल का करके आपने उस महीना का 10 लाख निकाल दिया, जबकि मेरा उस महीना में 50,000 का सेल है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50,000 का पेमेंट करूंगा और 3B फाइल करूंगा विद इन 60 days और वो 10 लाख का ऑर्डर निकल जाएगा विथड्रॉन. एंड दैट इज लॉ, बिकॉज ये तो करेक्ट हो गया ना, अब तो रेक्टिफाई हो गया आपका. अब ये 60 days में भी आपको चेतना नहीं आया. अब एक और राहत मिला है. कब से मिला है? फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम 1st of October 2023. एक साल भी नहीं हुआ है और राहत दिया गया. पहले 30 दिन था मैडम, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये 60 days है, ये पहले 30 days था. ये 30 को 60 की और राहत दिया गया, क्योंकि 30 days कुछ ही नहीं होता है. जब तक समझ में आता होता क्या है, देखते हैं, तब तक तो 30 दिन निकल जाता है. तो 30 को 60 days किया गया. अब 60 को फर्दर 60 days और बोल रहे हैं कि हम लोग और आपको राहत देंगे, बट you will have to pay late fees of 100 rupees per day after the 60 days. आप उस टाइम में भी अगर आप फाइल कर देते हैं 3B में 1 में करेक्ट पेमेंट, तभी भी हम लोग वो 10 लाख रुपए वाला बेस्ट जजमेंट ऑर्डर वापस ले लेंगे. ये आपका है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर मैंने 6 महीना फाइल नहीं किया, मैं मजा से मजा कर रहा हूं, 1 साल हो गया, नोटिस नहीं आया, ये मेरे पास में आ गया ऑर्डर कैंसिलेशन, सुओ मोटो कैंसिलेशन अंडर 29 रेड 21. कोई टैक्स डिमांड कुछ अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि 20, 21, 22 का केस है, अभी तो 19, 20 खत्म हुआ है. मैं मजा कर रहा हूँ, तो कैंसिल हो गया, अब मेरे का क्या लायबिलिटी, इन लोग क्या देखेंगे? नो, यहां पर फंसेंगे. सेक्शन 63 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न असेसमेंट हो सकता है आपका. इफ यू आर कैंसिल्ड सुओ मोटो फॉर नॉट फाइलिंग फॉर n नंबर ऑफ रीजन. ये n नंबर ऑफ रीजन है सुओ मोटो कैंसिलेशन का. धंधा ले लिया, 6 महीना तक स्टार्ट नहीं किया, कैंसिल सुओ मोटो. मैं प्रीमाइस में इंस्पेक्टर गया, धंधा ही नहीं है, कैंसिल कर दिया. 6 महीना तक फाइल नहीं किया, कैंसिल कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर अदर केसेस अंडर सेक्शन 29. सो अंडर सेक्शन 29 इफ आई हैव बीन कैंसिल्ड, आई एम अनरजिस्टर्ड, बट असेसमेंट कैन बी डन अंडर 63, नॉट 73, 74, क्योंकि आई एम नॉट रजिस्टर्ड. वो तो रजिस्टर्ड आदमी के ऊपर होता है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड आदमी भी नहीं छूटेगा. और एनी पर्सन हु इज लायबल टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन. सर रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड पता है अपने को? पता है कितना है? 40 lakhs. 40 lakhs for goods and services और only goods? Only goods, exclusive supply of goods. उसमें अगर 50,000 का अगर सर्विस है, तभी माना जाएगा कि 20 लाख हो जाएगा. Exactly, correct. तो मैं मिक्स अप्लाई करता हूं, लेकिन भूल से मेरा जो है I have sold mutual funds. म्यूचुअल फंड्स में जीएसटी नहीं लगता है, बट इट इज एन एग्जाम सप्लाई अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2. मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली. क्या प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा? ये नोटिस है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द नोटिस. ये 37,344 इज एग्जाम सप्लाई ऑफ सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इतना छोटा सा अमाउंट है, दिमाग ही नहीं लगाया मैं. 3 लाख समझ लीजिए इसको, और मेरा था 17.5 लाख रुपीस था मेरा, प्लस ये 3 लाख एग्जाम सप्लाई मिला के 20 लाख के ऊपर हो गया.
It is more than 20 lakhs. Annual aggregate turnover is accumulation of taxable supply, exempt supply, export supply. We all know that. So 20 lakh rupees से ज्यादा हो गया. He is supposed to take registration. और पूरा टैक्स पेमेंट करना था उसको पता ही नहीं है. तो अपने को ही नहीं पता है क्लियरली, मेरे को ही नहीं पता था. तो उनको कहां से पता होएगा? तो एग्जाम सप्लाई आदमी लोग भूल जाते हैं अक्सर. इलेक्ट्रिसिटी बेचता हूं क्या, कोई भी फ्रूट्स बेचता हूं, जो भी एग्जाम सप्लाई है, दैट विल बी एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. रजिस्ट्रेशन नहीं लेने से क्या हुआ? एंड दिस इंफॉर्मेशन दे विल गेट फ्रॉम 26AS बिकॉज सेल्स हुआ है मेरा, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर केस दे हैव द पावर टू डू assessment. Here, assessment of unregistered person. What will happen is they will issue a show cause notice. इसमें there is no mode prescribed. Within 15 days आप reply करो. 30 days भी नहीं. No SOPs, nothing. And if you don't reply within 15 days, then we will pass a best judgment assessment. And time limit is not 3 years. It is 5 years. Right? So ये तो अपने को और ध्यान देना पड़ेगा. Summary assessment. सर विजय माल्या भागने वाला है और उसके गोडाउन में बहुत माल पड़ा हुआ है. And that is all. He is not showed it as additional place of business. We don't know किसका है वो, कहीं पे छुपा के रखा है. And we've got report from the field officer. Sir, he will leave in 5 days. I don't have time for anything. I will go for self-assessment, summary assessment because I have cogent evidence. I will take permission from AC, JC, ADC, and I will say I am drawing up and adjudication this particular summary assessment. And जहां पर भी माल मिला मेरे को, वेयर हाउस कीपर को मैं पकड़ूंगा, बोलूंगा वो ये माल नहीं ले रहा है, वो आपका माल है बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ द माल, और आपके ऊपर में मैं टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब लगाऊंगा और आप दीजिए. ये लॉ बोलता है. एनी पर्सन लायबिलिटी पर्टेन्स इज नॉट असर्टेनेबल. द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन. तो आपके गोडाउन में किसी और का पड़ा हुआ है और आपका गोडाउन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिखाया गया है, तो वो तो नहीं फंसेगा, आप फंसने वाले हैं बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ द गुड्स एंड वो ऑर्डर आपके ऊपर में पास हो जाएगा, राइट? सर दिस इज द अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 73, 74 सब खत्म होने वाला है. कब? अभी असेसमेंट कौन सा खत्म हुआ? 1920, 2021 बाकी है, 21, 22 बाकी है, 22, 23 बाकी है, 23, 24 बाकी है. ये 24, 25 से. Not a problem for us right now, but we need to understand this because this has come out in the last 1 month. Section 74A मतलब क्या है सर? 73, 74 सर नहीं समझ में आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कौन दिमाग लगाएगा? आई विल मर्ज बोथ द सेक्शंस. टाइम लिमिट्स मर्ज कर देता हूं. 3 साल, 5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल. आई डोंट वांट टू टेक ऑल दैट बर्डन. देयर इज वन सेक्शन 74A एंड देयर इज वन टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74A. दैट इज व्हाट? 42 मंथ्स. 42 मंथ्स मतलब क्या? 3.5 साल. 3.5 साल में शो कॉज नोटिस इशू होएगा. 73, 74 में रूल क्या था? ऑर्डर इशू होने का टाइम लिमिट था. फिर -3 महीना, -6 महीना करते थे. ये तो ऑर्डर कुछ बात नहीं करता है, तो शोकॉज नोटिस का डायरेक्ट टाइम बोलता है. 3.5 साल में शोकॉज नोटिस इशू होएगा अंडर फ्रॉड भी, नॉन फ्रॉड भी. फ्रॉड, नॉन फ्रॉड अभी भी है, बट 3.5 साल कर दी है. तो ये डिसएडवांटेज है किसके लिए? 3.25 साल वाले नोटिस लोग लिए, जो जेन्युइन आदमी लोग है. जेन्युइन आदमी लोग 73 का कितना है? 3 years फॉर ऑर्डर -3 months, दैट इज 3.25 साल, 2.75 years. मतलब 2 साल 9 महीना. 2 साल 9 महीना बढ़ के 3.5 साल हो गया ना हम लोग के लिए. जो जेन्युइन आदमी लोग है, शोकॉज नोटिस निकल सकता है, 9 महीना और बढ़ गया. बट फॉर फ्रॉड पीपल इट इज वेरी वेरी गुड. फ्रॉड आदमी लोग के लिए कितना है सर? ऑर्डर कैन बी इशूड 5 years, मतलब 60 महीना -6 महीना शोकॉज नोटिस, 54 months करंट है. ये कम होकर के आपका कितना हो गया? 42 months. तो फ्रॉड वाले बोल रहे हैं सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा है. 1 साल पहले ही नोटिस आ जाएगा. 1 साल तक और हमको तड़पना नहीं है, हम चोरी करके हम निकल जाएंगे. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. बट आप ही मेरे को बोलेंगे सर तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. फ्रॉड है, नॉन फ्रॉड है, आप हो कि दूसरा आदमी है, कोई फर्क ही नहीं है, तो सेक्शन 1 हो गया. नो 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 नो, पेनल्टी स्टिल द सेम. पेनल्टी स्टिल द सेम सर. वी आर अवेयर, अपने ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किए. 73 में voluntary payment with before show cause notice, no penalty. Within 30 days from issue of show cause notice, no penalty. Within 30 days of issue of order, no penalty. और उसके बाद नहीं, 30 days of issue of order जो आपका है शायद उसमें भी नहीं है ना. इसमें आफ्टर इशूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस नहीं, ऑर्डर इशू होने के बाद में आपका 10% और जो मैंने आपको बोला 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever is higher, right? बट आपका 74 में क्या है? 100% ऑफ पेनल्टी इज देयर बिकॉज इट्स अ फ्रॉड केस. बट उसमें भी सब्सिडाइज बेनिफिट्स है. क्या है? शोकॉज नोटिस इशू हो जाता है. शोकॉज नोटिस के पहले 15% देंगे क्योंकि आप चोरी की है. वॉलंटरी कर रहे हैं लेकिन 15% तो लगेगा पेनल्टी.
शोकॉज नोटिस इशू होता है, 30 दिन के अंदर आप फ्रॉड केस में पेमेंट कर देते हैं 25%, 75% माफ, क्योंकि आपका तो 100% लगने का है, 75% माफ। ऑर्डर निकलने के 30 दिन बाद में भी आपको हम राहत देंगे, 100% पेनल्टी नहीं चार्ज करेंगे, सिर्फ 50% चार्ज करेंगे। तो हर स्थिति में 73 में मैक्सिमम पेनल्टी क्या लग सकता है, 10% ऑफ टैक्स एंड 10,000 व्हिच एवर इज हायर, और इसमें मैक्सिमम पेनल्टी 74 में तो है ही। ऑर्डर के 30 दिन बाद में एक दिन भी निकल गया तो 100% पेनल्टी हो गई। ये सब बरकरार है 74A। जस्ट द टाइम लिमिट्स हैव subsumed to become one, just the heading of the section has subsumed to become one, but there is a clear distinction of people who are, there is a clear distinction of people who are fraudulent and those people who are bona fide still exist, since the penalty levy is different. And this is coming from when, sir? This is coming from this 2024-25। अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो 20-21 का चल रहा है, 21-22-23, मतलब 24-25 में जब आएंगे, उस टाइम आएंगे नहीं, जब हम कहाँ आएंगे सर, कहाँ आएंगे? 24-25 का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 टू फाइल 9, और अभी क्या बोलता है 3.5 साल फ्रॉम एंड ऑफ 2025 कितना होता है? मिड 2029। और ऑर्डर कब तक पास हो सकता है? इसमें बोलते हैं ऑर्डर कैन बी पास विद इन 1 ईयर, इसमें बोलते हैं ऑर्डर कैन बी पास विद इन 1 ईयर, ऑर्डर कैन बी पास विद इन 1 ईयर। यहां पर ये देखिए 1 ईयर, दिस कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स। ठीक है, तो दिस द न्यू सेक्शन एमनेस्टी स्कीम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एमनेस्टी स्कीम। ये सब देखिए एमनेस्टी स्कीम है आपका। AS-70 10 इशू हुआ, स्क्रूटनी नोटिस, जस्ट 2 minutes more then we can have the break। AS-70 10 इशू हुआ है, स्क्रूटनी नोटिस, उसमें एमनेस्टी ले सकते हैं क्या? अरे सर एमनेस्टी मतलब क्या हुआ? एमनेस्टी मतलब तो वो होता है जहां पर शोकॉज नोटिस इशू हुआ हो, जहां पर ऑर्डर इशू हुआ हो, आपका डिमांड ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर, या तो अपीलेट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, या तो फ्रॉम दी जीस्टैट, या तो रिट। ये तो AS-70 10 तो कुछ है ही नहीं, AS-70 10 तो शोकॉज नोटिस ही नहीं है, दिस इज एन असेसमेंट, इट्स नॉट एन एडजुडिकेशन। सो ये होने के बाद में जब 73 का खुलेगा तब जाके राहत मिलेगा आपको। लेकिन सर वो सब तो टाइम लिमिट निकल ही गया है, ये तो टाइम लिमिट निकल गया है। 1920 का लास्ट डेट टू इशू शोकॉज नोटिस वाज 31 मई, तो खत्म हो गया। अभी राहत दिया जा रहा है 17, 18, 18, 19, 19, 20। व्हाई? बिकॉज ऑर्डर्स हैव ऑल बीन पास, अपील्स आर बीइंग फाइल्ड। ये सब केसेस में तो अपील भी डिस्पोज ऑफ भी हो गया है। लेकिन जेन्युइन केसेस, सिर्फ 73 वाले केसेस के लिए राहत है, 74 फ्रॉड करते हैं उनके लिए राहत ही नहीं है ये। या तो रिफंड का अगर कोई ऑर्डर आया है 50 करोड़ का, आप रिफंड गवर्नमेंट से लेके रखे हो, 5 करोड़ का, 50 लाख का, और वो एरोनियस ले लियो, गवर्नमेंट से कुछ पैसा आप लियो, गवर्नमेंट छोड़ देगा ऐसे एमनेस्टी स्कीम में? इट्स नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट बोलेगा कि 50 लाख तो आप दो, साथ में 18% इंटरेस्ट भी दो। सो केसेस ऑफ एरोनियस रिफंड ऑर्डर्स आर आल्सो नॉट कवर्ड अंडर एमनेस्टी स्कीम। 74 फ्रॉड केसेस आर आल्सो नॉट कवर्ड, ओनली 73 केसेस आर कवर्ड, राइट? तो ये आप देख सकते हो इसमें। नाउ ऑन 1st of November द रूल, द सेक्शन 128A विल बी नोटिफाइड। अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है ये 128A, ये अभी कल ही आया है 54 GST काउंसिल मीटिंग में, सेक्शन 128A। दिस विल बी नोटिफाइड फ्रॉम 1st of November। ये 1st of November एनीवन कैन टेल मी क्यों दिया गया है? सर 17-18 का लास्ट डेट टू फाइल अपील वाज 31 सर ये ऑर्डर का डेट है, अपील का मैं बोल रहा हूँ। लास्ट डेट टू फाइल अपील फॉर 17-18 का ऑर्डर कौन सा है? 3 months फ्रॉम 31st of December। कब था? 31st मार्च, प्लस 1 month कॉन्डोनेशन 30th अप्रैल। ये तो केस ही खत्म है। या तो अपील ऑर्डर निकल गया, या तो अभी झूल रहा है, या तो निकल के मैं वेट कर रहा हूँ कि जीस्टैट कब खुलेगा, कब मैं अप्लाई करूंगा। ये तो केस ही खत्म है 17-18 का। 18-19 का ऑर्डर लास्ट डेट था 30 अप्रैल। 3 महीना प्लस करिए, क्या हुआ सर? मई, जून, जुलाई, प्लस 1 महीना और कॉन्डोनेशन का अगस्त, मतलब वो भी निकल गया है। तो मतलब कि अपील तो फाइल हो ही गया है, हो सकता है ऑर्डर्स भी कोई केस में निकल गया 18-19 का। तो ऑर्डर निकल गया है, जीस्टैट के लिए अपील के लिए वेट कर रही है। मेरे को झमेला नहीं चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम ला करके जितना टैक्स पेमेंट मेरे को जेन्युइन केसेस है टैक्स का मैं ले लूंगा और इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर दूंगा। सर 1920 अभी जस्ट खत्म हुआ है, इसका अभी अपील फाइल हो रहे हैं। तो कब तक अपील फाइल हो सकते हैं इसका बताइए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो ये स्कीम नवंबर में लाया गया है क्योंकि 31st मार्च लास्ट डेट है टू मेक पेमेंट वॉलंटरीली अंडर द फॉर्म टू गेट दिस एमनेस्टी स्कीम। तो कुछ तो महीना देंगे करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए अपील। ये सब अपील विड्रॉ होगा, अगर कुछ भी अपील किया हुआ है वो विड्रॉल होना चाहिए टू अवेल फॉर दिस, राइट? सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। सो
Thank you everyone for the first session. If you have any questions, let us ask now. कि session के दूसरे session में भी पूछ सकते हैं अपने. Let us have the tea break. Then we will start in 15.